شہر کے مزید 15 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ علامہ اقبال ٹاؤن، مصطفیٰ ٹاؤن، پی آئی اے سوسائٹی میں اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ ڈی ایچ اے فیز 1، فیز 5، عارف جان روڈ، ایڈن کاٹیج کو بند کر دیا گیا۔ راج گڑھ، اسلام پورہ، ساندھا، شاہ جمال میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ گارڈن ٹاؤن کے علاقے عطا ترک، ابو بکر بلاک اور ماڈل ٹاؤن ڈی بلاک بند۔ لاک ڈاؤن 13 مئی تک نافذ العمل رہے گا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کورونا پھیلنے کے خدشات کے پیش نظر پابندیاں مزید سخت کر دی گئیں۔ شہر میں 2 روز کے لیے مکمل طور پر لاک ڈاؤن۔ تمام کاروبار، مارکیٹیں اور بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند رہی۔ رمضان بازار، دودھ دہی کی دکانیں، تندور، گروسری اور کریانہ سٹورز کھلنے کی اجازت۔ سبزی منڈیاں، سبزی اور گوشت کی دکانیں بھی کھلی ہیں۔ میڈیکل سٹورز، پیٹرول پمپس اور ویکسینیشن سینٹرز بھی اوپن۔ صرف بنیادی اشیاء ضروریہ کی دکانیں 9 بجے سے 6 بجے تک کھلیں گی۔ آٹے کی چکیاں بھی 2 روز کے لیے بند۔ برانت روڈ، ہارڈ ویئر مارکیٹ، شالم مارکیٹ، انارکلی اور اچرا بازار بھی بند ہیں۔ حکومت کا یوم علی کے جلوسوں کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ۔ این سی او سی کا یوم علی کے انعقاد سے متعلق اہم اجلاس۔ یوم علی کے مجالس ایس او پیز پر عمل درآمد سے مشروط۔ مجالس پر تراویح اور مساجد والی ایس او پیز نافذ ہوں گی۔ یوم علی کے مجالس میں محدود افراد شریک ہو سکیں گے۔ وزارت داخلہ نے پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ اوقاف کی مساجد میں اعتکاف پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ کرونا وائرس مزید خطرناک ہو گیا۔ لاہور میں موذی وائرس 37 زندگیاں نکل گیا۔ شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران 891 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب بھر میں 2068 مریض سامنے آئے۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 3,03,182 ہو گئی۔ صوبہ بھر میں کرونا وائرس سے مزید 90 ہلاکتیں۔ اموات کی کل تعداد 8,500 ہو چکی۔ شہر کے سرکاری اسپتالوں کے وینٹیلیٹرز 83% تک بھر گئے۔ سرکاری اسپتالوں کے آکسیجن بیڈز پر 63% مریض داخل ہیں۔ شہر کے سرکاری اور نجی اسپتالوں میں 1,180 مریض زیر علاج ہیں۔ میو ہسپتال میں سب سے زیادہ 250 مریض داخل ہیں۔ شہر میں مریضوں کو وینٹیلیٹرز کے حصول کے لیے شدید مشکلات کا سامنا۔ عوام کو موذی وائرس سے بچانے کا مشن۔ 3 مئی سے ویکسینیشن کا دائرہ کار وسیع ہوگا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے 10 اسکولوں میں ویکسینیشن سینٹرز قائم کر دیے۔ گورنمنٹ اے پی ایس اسکول ماڈل ٹاؤن میں تیاریاں۔ شہریوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں پہنچا دی گئیں۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے شامیانے بھی لگا دیے گئے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ 50 سال سے زائد عمر کے افراد کی واک ان ویکسینیشن کا چوتھا روز رہا۔ ایکسپو سینٹر میں شہریوں کی بڑی تعداد امٹ آئی۔ ویکسینیشن کے لیے لمبی قطاریں لگ گئیں۔ شہریوں کو چینی ویکسین سائنوویک لگائی جا رہی ہے۔ پیر سے 40 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن شروع کرنے کا انتہا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بھی کورونا ویکسین لگوا لی۔ ایکسپو سینٹر میں انتظامات پر اظہار اطمینان رہا۔ دیگر شہروں میں بھی ایسے انتظامات کیے جانے چاہیے۔ سراج الحق کی گفتگو۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی ناقص حکمت عملی۔ ہزاروں آکسیجن سلنڈرز پورٹ پر کلیئرنس کے منتظر ہیں۔ پنجاب میں آکسیجن کی کمی کے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ کورونا کے مریضوں کو آکسیجن کی فراہمی بحران کی صورت اختیار کرنے لگی۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں اسپتالوں میں آکسیجن کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ صوبے بھر میں ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد کو بڑھایا جا رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر 80,000 سے زائد افراد کی ویکسینیشن کو یقینی بنایا جائے گا۔
कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए बड़ा कदम। पाकिस्तान आने वाली एयर ट्रैफिक में 80% कमी का फैसला कर लिया गया। पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले वतन वापस आ सकेंगे। मुसाफिरों के लिए 72 घंटे कबल कोरोना मनफी रिपोर्ट दिखाना लाजिम करार होगा। एयरपोर्ट आमद पर मुसाफिरों का दोबारा PCR टेस्ट किया जाएगा। ये पाबंदियां 5 से 20 मई तक नाफिजुल अमल होंगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी का नोटम जारी। रमज़ान बाजारों में कतारें बदस्तूर बरकरार। 2 किलो चीनी के हुसूल के लिए शहरी खार। शादमान बाजार में आलू, प्याज और सब्जियों के स्टॉल्स पर भी लाइनें लग गईं। सार्फिन के लिए पंखों का इंतजाम ना किया जा सका। बरकत मार्केट बाजार में भी सब्सिडाइज्ड अशिया का हुसूल मुश्किल हो गया। कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। जल्लो मूड रमज़ान बाजार में भी शहरियों का रश रहा। ताजपुरा रमज़ान बाजार में लंबी कतारें। मर्दों, खातीन और बच्चों के 2 किलो चीनी के लिए जतन। कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर तार। इंतजामिया सार्फिन में समाजी फासला बरकरार रखने में नाकाम हो गई। वहदत रोड बाजार में भी चीनी के लिए लाइनें लगी रहीं। शहरी कहते हैं 2-2 घंटे चीनी खरीदारी के लिए इंतजार करना अब मामूल बन चुका है। तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। वक्त गुजरता गया मगर बदले ना बंदाए मजदूर के हालात। आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पंजाब के 33 लाख मजदूरों में से सिर्फ 11 लाख को रजिस्टर्ड किया जा सका। रजिस्टर्ड मजदूरों की भी निस्फ तादाद सहूलियात से महरूम है। पैसी हुकाम कहते हैं कि मजदूरों को माली इमदाद तकसीम करने के लिए जल्द ऐप लॉन्च की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने वर्कर्स की कम अज़ कम उजरत में इजाफे का फ़ैसला किया है और आइंदा से कम उजरत 20,000 रुपये करने की मंजूरी दे दी है। यह हुकूमत पंजाब की जानिब से यौम मई के मौका पर मेहनत कशों के लिए एक तोहफ़ा है। यौम मजदूर पर हुकूमत का अहसन इक़दाम। वज़ीर आला का मजदूर की कम अज़ कम उजरत 20,000 रुपये करने का ऐलान। हुकूमत वर्कर्स की कम अज़ कम उजरत में आइंदा भी इजाफा करेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ज़ेर सदारत इजलास कहते हैं लाहौर, ननकाना और मुल्तान की लेबर कॉलोनियों में मेहनत कशों को फ्लैट्स अलॉट कर दिए गए हैं। बुज़दार हुकूमत मजदूरों और मेहनत कशों के लिए इनकलाबी इक़दामात उठा रही है। मुअव्विन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट। गैर मुल्की सफ़ीर पाकिस्तान आकर खुद हालात देखें। पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों के लिए शरीयत इस्लामिया है। हमारा कानून वाज़ेह है कि किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जबरी मजहब की तब्दीली के नाम पर किया जाने वाला प्रोपेगेंडा झूठ है। 7-8 माह के दौरान 1 या 2 ऐसे मामलात सामने आए थे। हुकूमत ने फौरी इक़दामात उठाकर उन मामलात को हल किया। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लगता है नून लीग वज़ीर आज़म के नुक्ता नज़र से मुत्तफ़िक हो चुकी है। अदम एतमाद लाते तो अब तक PTI हुकूमत का खात्मा हो चुका होता। कोरोना सूरत हाल में हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम रही। कोरोना का मुकाबला करने के लिए सिवाय इजलासों के कुछ नहीं किया जा रहा। वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट वक्त पर नहीं की गई। कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर में कोरोना वबा के बावजूद भी जराइम पेशा नासिर सरगर्म रहे। रवां साल अब तक मुख्तलिफ वाक़यात में 130 अफराद कत्ल किए गए। डकैती मज़ाहमत पर 8 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। डकैती और चोरी के 1325 वाक़यात में शहरी कीमती सामान से महरूम हुए। गाड़ी और मोटरसाइकिल छीनने के 170 से ज़ायद वाक़यात पेश आए। गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल चोरी की 3100 से ज़ायद वारदातें हुई। मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन की तनसीबात की हिफाजत का मामला। वज़ीर आला की मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन की सिक्योरिटी की मंजूरी। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मेट्रो की सिक्योरिटी का प्लान तैयार कर लिया।
सर्वेलेंस के लिए ऑरेंज ट्रेन के अंदर भी सिक्योरिटी तैनात करने का फैसला। ऑरेंज ट्रेन के अंदर गार्ड्स की तैनाती की मंजूरी गवर्निंग बॉडी से ली जाएगी। मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के लिए 300 नए गार्ड्स तैनात किए जाएंगे। बारिशी पानी को महफूज बनाने के मंसूबे को बड़ा धचका। वासा का मानसून से कबल 3 वाटर टैंक्स की तामीर इल्तवा का शिकार हो गई। वाटर टैंक्स की तामीर फंड्स की अदम फराहमी की वजह से रुक गई। वासा की आइंदा माली साल के बजट दस्तावेजात ने भांडा फोड़ दिया। वासा का 3 वाटर टैंक्स की तामीर अक्टूबर 2021 में शुरू करने का फैसला। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज कहते हैं कि जैसे ही फंड्स का इजरा होगा तामीराती काम का आगाज कर देंगे। असातिज़ा के लिए खुशखबरी। असातिज़ा के तबादलों पर पाबंदी खत्म हो गई। 10 मई तक दरखास्तें जमा कराने की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक असातिज़ा घर बैठे तबादलों के लिए ऑनलाइन दरखास्त जमा करवा सकेंगे। असातिज़ा को तबादलों के ऑर्डर्स 20 मई को जारी होंगे। कोरोना के हालात में ईद के मलबूसात की खरीदारी का मिशन। खवातीन को मनपसंद कपड़े खरीदने की फिक्र। ज्यादातर खवातीन डिजाइनर कलेक्शन और रेडीमेड मलबूसात को तरजीह देने लगी। डिजाइनर्स ने भी मौसम की मुनासबत और रंगों को मद्देनजर रखते हुए वैरायटी मुतारिफ करवा दी। और पीसीबी के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां मुतवक्को। कौमी क्रिकेटर्स को गुज़श्ता साल की तरह नए कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई से मिलेंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को दौरा इंग्लैंड से कबल हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को ए कैटेगरी मिलने का कवी इम्कान है। यासिर शाह को ए कैटेगरी से बी या फिर सी कैटेगरी में मुंतकिल करने का इम्कान, जबकि असद शफीक, शान मसूद और हारिस सोहेल की तनज़्ज़ुली होगी।